the topic of what next part from your syllabus. That is what the stereochemistry. So, in terms of what organic chemistry, stereochemistry is nothing but, first of all, what the stereo is nothing but the space. What is stereo now? A stereo is called to be the space now, and you know that particularly for solid, generally these terms are used now in a space. Okay, uh, what is that stereochemistry now? Where it is useful? The stereochemistry is used to study the properties of a compound or a molecule with respect to what? The arrangement of atom or group in a three-dimension space now. So basically, what is meant by stereochemistry now? The stereochemistry is nothing but the one, the study of properties now. Example, what are the properties of a particular compound or molecule? Physical or chemical or spectral? Physical, chemical, or one can call as a spectral. The study of properties, example, of a compound or a molecule or a what? Molecules with respect to arrangement of what atom now? Or a group in a three-dimensional space now. In what? 3D space. So that terms is going to be called as a stereochemistry. And most of the organic compounds are in a three dimension. They require the three different axes to explain the whole property of a molecule. Our board, our page, our book, our blackboard, all are the example of two dimension, right? And majority of what organic molecule, they are in a three dimension. Then how one can explain this 3D molecule on 2D board? It's very difficult again. And now we are going to discuss the arrangement of an atom or a group particular molecule from a particular molecule in a 3D space now. This is very interesting task, okay? And first person who give the idea, who give the exact meaning of tetrahedral, and that person is Want Label. Want Label is the person who give the idea about tetrahedral carbon. And tetra means what? There are four. And hydra means there are faces. So there are four faces are present in a carbon. Basically, that will be called as a tetrahedral carbon. And that carbon is indicated in these terms. Example, look at this one. This is my one bond, and this is what another bond. So basically, in any tetrahedral carbon, the two bonds which are simply mentioned by line, okay, one bond is mentioned by a thick line, and one bond is mentioned by what? The dot line. So what does it mean now? In stereochemistry, these are the most basic condition. First important. So this line, whatever group which are present on a line, that means these atom or these groups are present in a plane now. That means this bond indicate whatever present on that bond now, that will be on a plane now. That means on example is this is a board now. So on a plane. And whatever the thick line is there now, that means it is above the plane. It is what? Above the plane now. And if it is in back, it is dotted line, it is nothing but below the plane. So such a type of a carbon is said to be the non-planar carbon. Non-planar carbon means they don't have planarity. It requires more than two, one can say two dimension, more than two dimension to explain the properties of that particular carbon. So Want Label, you first give the idea about what the tetrahedral carbon. Then what is stereochemistry now? Stereo is nothing but the word which is used for space, and space is required for generally solid molecules. You know that solid required the space now. In terms of that, stereo means a solid part. Example, if you just imagine that stereo means a solid part.
ठीक है, तो कहाँ पे यूज करते हैं अपन स्टीरियो वर्ड? द स्टीरियो वर्ड इज यूज्ड where the something we have to explain, something needed the some space, something will take the space now. Okay, that means we have a molecule and we have to arrange that bonded atom, or we have to arrange that atoms or groups in a three-dimension way now. And basically that stereochemistry is simply nothing but the we have to study the properties now, and properties in terms of physical properties, chemical properties. Physicals are nothing but the melting point, boiling point. Okay, so various physical properties are there. Chemical properties in terms of what? Reactivity. Spectral properties in terms of what? Their absorption values, emission values, their chemical shift, etc., etc. So any molecule or a compound we have to study why about this purpose. So basically for that stereochemistry is very important. So the study of properties of a particular molecule with respect to what their arrangement. Now, example, I have cis and trans molecule. Now. So I have suppose example, this is my cis 2-butene and this is what trans 2-butene. What I'm going to do here now, I just change the position of what methyl group. Now, example, this is my 2 hydrogen, right? In first case, the 2 hydrogens are oriented in a such a way that they are both on a same side. But in second molecule, they are opposite to each other. So we are just going to change the position now. And now both molecules show the different properties. One is what unstable, second is very stable. Okay. So if you consider this phenomena now, the stereochemistry is very useful, and that stereochemistry is used to explain the stability, to explain the properties of all this system. Okay, understood? Nice. So what the next part is, uh, next is what, that any object, suppose any object means in terms of what molecule. Okay, in terms of what chemistry we are considered, suppose example it is an any organic molecule, any inorganic molecule, etc. Now any object, it may be in one dimension, it may be in two dimension, or it may be in three dimension. So one dimension requires, if you any object is in one dimension, to explain that one dimension you require the line presentation, you require just the line, and presentations are nothing but the we have to present the molecule now. So one dimensions are nothing but the line, basically required the only line to explain the properties of that particular compound. So जो भी 1D में आते हैं आपके, तो इनके लिए आपको क्या लगेगा, एक लाइन प्रेजेंटेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए. 2D का मतलब क्या होता है? So जहाँ पे दो प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, that means in 2D two planes are perpendicular to each other. Two plane are what? Perpendicular to each other. फिर परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि एक एक्सिस अगर ऐसा रहेगा तो दूसरा एक्सिस हमारा ऐसा रहेगा, तो जो भी हम निकाल सकते हैं इसके बीच में से, दैट इज एंगल एंड एक्सेट्रा. सो ऑल दिस थिंग वी कैन बी फाइंड आउट नाउ. एग्जांपल हमारे पास जैसे मैं जिस पे लिख रहा हूँ ये भी एक 2D का एग्जांपल है, तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूँ. आपका जो बुक है जिस पर आप लिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो व्हाट द 2D नाउ. ओके, कोई पेपर का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं. कैन टेक द पेपर, आई कैन यूज द स्क्रीन, देन बोर्ड आल्सो. ये सब किसके एग्जांपल है? दीज आर 2D नाउ. बराबर है. और सबके Yes, सब चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक हो, सबका सब कहाँ पे आएगा? वो 2D में आ सकता है पूरा का पूरा. कोई भी मॉलिक्यूल आप 2D में एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑल कम्स अंडर द दिस कैटेगरी नाउ, मेजॉरिटी. सो ऑब्जेक्ट आपका 2D है तो रिक्वायर्ड द टू प्लेन्स नाउ. बट व्हाट अबाउट द 3D नाउ? 3D के लिए आपके पास क्या जरूरी है? वी रिक्वायर द थ्री प्लेन्स नाउ. वी रिक्वायर द व्हाट? हाउ मेनी प्लेन्स? वी रिक्वायर द थ्री डिफरेंट प्लेन्स नाउ टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री प्लेन्स. ओके, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर नाउ. परपेंडिकुलर टू क्या रहने चाहिए? वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए. जैसे अगर आप इसका एक्सिस निकालोगे तो कैसा आएगा आपका? ऐसा आएगा. तो एक्स वाई जेड हो गया आपका, और ये हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही एक्सिस थे. लुक एट दिस वन, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ एक लाइन है, एग्जाम्पल एक्स, एंड दिस इज वाई. यहाँ पे आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक आपके पास क्या है? जेड एक्सिस.
अब इसमें से क्या होता है, 50% जो मॉलिक्यूल है आपका वो बोर्ड पे आएगा और 50% जो है जनरली वो बैक साइड जाता है, मतलब बैक मतलब आउट ऑफ द बोर्ड जाएगा। सो बेसिकली, और इस केस में आपका पूरा का पूरा 100% मॉलिक्यूल जो है आपका बोर्ड पे आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50% ऑन अ बोर्ड इफ अगर 3D है तो, और 50% जो है वो आगे पीछे जाएगा। ओके, so you can imagine what is 1D, what is 2D and what is what the 3D now. So these are the object presentation. Object आपका कैसा है उस हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. So some molecules are in a 2D, some molecules are in 1 dimension and some are in a 3D dimension. Okay, so the majority of what organic molecules are in a 3D. Okay, majority of what organic molecules are 3D. So it's not possible to explain all the molecules on 2D board now. So that majority of molecules कैसे होते हैं, 3 डायमेंशन में होते हैं। और हमारा जो एग्जांपल है, जैसे बोर्ड का, पेपर का जो एग्जांपल है, कोई सरफेस है, ये कौन सा एग्जांपल है, 2 डायमेंशन है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा बोर्ड है इसको हम 3D करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सो पेपर, बोर्ड किसका एग्जांपल है, paper and board are the example of 2 dimension, while the organic molecules or majority of molecules are what the 2D now. फिर हम क्या करते हैं, if you want to convert the 3D molecule onto the board now, फिर हमको क्या करना है, 3D मॉलिक्यूल में चेंजेस करने हैं। सो एग्जांपल, हमारे पास 3D मॉलिक्यूल है और हमको उसको लिखना है किसके ऊपर, 2D पे लिखना है। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे वी हैव टू डू द सम मैनिपुलेशन ऑन 3D मॉलिक्यूल। तो हम अगर जब हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आ रहा है क्या समझ में आपकी, क्या करना है यहाँ पे। तो फिर मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मैनिपुलेशन तो करना है लेकिन कैसे करना है। फिर हम क्या करते हैं इसमें, जनरली क्या करते हैं कि जो बोर्ड हमारा जो एग्जांपल है वो 2D का एग्जांपल है, बोर्ड 2D है। दिस इज एग्जांपल, माय बोर्ड इज व्हाट 2D नाउ, जिसमें 2 ही एक्सिस मेरे पास प्रेजेंट है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि जो भी मॉलिक्यूल है जिसको 3 एक्सिस प्रेजेंट है उसमें, तो हम क्या करते हैं उसको कि हम जैसे एक लाइन तो यहाँ दिखा सकते हैं, दूसरी लाइन यहाँ दिखा सकते हैं, हो गया आपका 2 तो चले गए। बट अभी हमको और 2 दिखाने हैं जो आपकी क्या रहेंगे, नॉन प्लेन रहेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सो एक को दिखाते हैं हम थिक लाइन से और एक को दिखाते हैं हम डॉटेड लाइन से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये जो 2 लिखे वाले हैं आपके, ये कहाँ पे रहेंगे, ये आउट ऑफ प्लेन रहेंगे। सो दिस एक्स एंड वाई, वॉट एवर द आइटम्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई, दिस इज व्हाट, इन अ प्लेन। ये कैसे रहेगा आपका, इन प्लेन रहेगा। और ये भी कैसे रहेगा आपका, दिस इज ऑल्सो व्हाट, इन प्लेन। बट दिस वन इज, ये कैसे रहेगा आपका, जो डॉटेड लाइन से लिखा है इसका मतलब क्या होता है, सो इट इज बिलो, इट इज व्हाट, बिलो द प्लेन। और ये जो लिखा जाता है, दिस इज व्हाट, अबव द प्लेन। दैट मीन्स दिस dotted and thick line basically indicate that these are present on a non out of plane, यानी कि वो प्लेन में प्रेजेंट नहीं। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, 3D मॉलिक्यूल को जो है 2D में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करते हैं, उस 3D मॉलिक्यूल पे मैनिपुलेशंस करते हैं। और मैनिपुलेशंस करने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो कार्बन पहले हमको ऐसे दिखता था, अभी जो कार्बन आपके पास प्रेजेंट है वो आपको कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशंस, राइट। तो मैनिपुलेशंस करना मतलब क्या होना है कि 3D मॉलिक्यूल तो 2D पे पॉसिबल नहीं रखना। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ इसमें से जो बॉन्ड है वो थिक लाइन से निकालते हैं और कुछ जो निकालते हैं वो डॉटेड लाइन से निकालते हैं। सो थिक और डॉटेड का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, दोनों भी क्या है, प्लेन में प्रेजेंट ही नहीं है। बट जो 2 लाइन वाले निकाले हैं ये कैसे है, दीज आर इन अ प्लेन। Now what is meant by the presentation? So presentation is, or one can call as a projection ना, उसको अपन projection भी बोल सकते हैं। So पहले हम बात करेंगे the presentation of 3D molecule on 2D board, on 2D board और paper। हम क्या कर रहे हैं अभी, 3D molecule का conversation जो है 2D में कर रहे हैं। by what? So presentation of what 3D molecule, यहाँ पे molecule लिखो इसको, presentation of what 3D molecule on this is 2D board now, 2D board paper जो बोलना है उसमें बोल सकते हैं आप, ठीक है। So that phenomena is called as a molecular presentation, इनको बोला जाता है molecular presentation। What is molecular presentation now? Molecular presentation because majority of the molecules are in a 3D way,
मैक्सिमम मॉलिक्यूल कैसे आपके 3D है, बट हमारे पास जो है वो बोर्ड, so we cannot explain all 3D onto the 2D board. Then we have the concept is what the presentation of 3D molecule onto the 2D board or 2D paper. That phenomena is called as a molecular presentation. और हमारे पास कुछ established already जो है कुछ convention दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल सबसे पहले मैं बात करूंगा, that is called as a wedge presentation, wedge representation. सबसे पहला जो है हमारे पास कौन है, wedge representation, एक ये हो गया, और इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, वेज और नथिंग बट द फ्लाइंग रिप्रेजेंटेशन, वेज और फ्लाइंग रिप्रेजेंटेशन. जिसमें थिक और डॉटेड लाइन दिखाया जाता है, वो वाला प्रेजेंटेशन मीन्स फॉर द वेज प्रेजेंटेशन. दूसरा जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द फिशर प्रोजेक्शन, फिशर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं उसको, फिशर रिप्रेजेंटेशन. ये सब क्या है ये. देन थर्ड वन, न्यूमन्स प्रोजेक्शन और न्यूमन रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, न्यूमन्स रिप्रेजेंटेशन. योर नेक्स्ट वन इज ए Sawhorse representation. And your last one, that is called as a zigzag representation. Why we are going to call as a representation? Yes, why we call the representation now? So here you can use the re now. So because we have already the molecule in a 3D way, 3-dimension molecule आपके पास है, and we are going to what converts it into the 2D now. That's why we have the representation of that particular molecule, and for representation we have different convention examples are there. They are already established now, and that phenomena are called as a molecular representation. Example wedge hai, example Fisher is there, Newman's is there, Sawhorse is there, and zigzag is there. Okay, got it? Yes sir. How many are there that are used to convert 3D into 2D? आपको समझ में आ रहा है क्या, कुछ चालू है तो? मुझे समझ में आ रहा है सर. ओके सर हमारा नेटवर्क नहीं था तो हम चले गए थे सर बीच में से, पर पता है सर ये. यस. ओके, ये हमने जो स्टार्ट किया है यहाँ से कुछ दिक्कत है किसी को? नो सर. ओके फाइन. So now we are have the conversion now. Basically we must convert now. Convert नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, क्योंकि सारे examples 3D में है. So that's why stereochemistry का मतलब ये होता है कि आपको arrange करना है in a space now. Okay, and we have to see the properties of that molecule after changing the groups or etc. तो सबसे पहला मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे. So that presentation is called as a wedge presentation, wedge representation. बहुत आसान सी केमिस्ट्री है इसमें. सो इसमें ज्यादा तो कुछ सा डिफिकल्ट टास्क है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए. चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते आना चाहिए. सो वेज का एक ग्रीक मीनिंग भी है. वेज का मतलब होता है कि हम एक टाइप का मॉडल है. वो वेज इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ ए मॉडल या टाइप ऑफ ए फार्मूला टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. फिर अभी फार्मूला या प्रेजेंटेशन है या मॉडल है, ये कैसे दिखाते हैं? तो जनरली क्या होता है, वेज में क्या होता है कि 2-3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल में दिखाने के लिए. जैसे एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको लगाने होते हैं. सबसे पहला होता है कि वेज रिप्रेजेंटेशन में कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो हम दिखाते हैं हेवी या फिर ब्रोकन लाइन में. ओके, सो इन वेज रिप्रेजेंटेशन सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन बाय और आर शोन विथ द हेवी. कैसे दिखाते हैं इसको? हेवी और ब्रोकन वेज ना. ब्रोकन वेज का मतलब होता है मॉडल, ठीक है. और इन जनरली क्या होता है कि जो वेज प्रेजेंटेशन है या वेज रिप्रेजेंटेशन है, इसमें 3 टाइप्स के हम जनरली बॉन्ड यूज करते हैं. एक होता है ब्रोकन, या जिसको अपन डैश बोल सकते हैं.
ठीक है, एक होता है थिक वाला और एक होता है एम्प्टी वाला, या उसको अपन नॉर्मल भी बोल सकते हैं। सो कुछ वेज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि कुछ बॉन्ड जो है हम इसमें से जो भी मॉलिक्यूल रहेगा आपका उसमें से कुछ बॉन्ड जो है हेवी या ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। फिर हेवी का मतलब क्या होता है, वी विल फर्स्ट अपन डिस्कस दिस वन। ओके, सो वेज प्रेजेंटेशन में तीन टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। सो थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे दैट इज कॉल्ड ब्रोकन, ब्रोकन और उसी को ही जो है आप डैश बोल सकते हैं, ब्रोकन और डैश। और ब्रोकन और डैश का मतलब क्या होता है, विच टेल्स अबाउट दैट योर बॉन्ड इज बिलो द प्लेन। ब्रोकन और डैश का मतलब क्या होता है, जो भी बॉन्ड हम लिख रहे हैं या जो भी हम बता रहे हैं, सो बॉन्ड विच इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन ना, या उसको आप बिहाइंड भी बोल सकते हैं, या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये भी आप टर्म यूज कर सकते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सो ये ब्रोकन का मतलब कैसे है, ब्रोकन मीन्स व्हाट द एग्जाम्पल, आई विल शो यू व्हाट इज मीन बाय ब्रोकन। एग्जाम्पल ये है ब्रोकन लाइन, इसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन। ऐसे वाली लाइन अगर रहेगी सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए डैश लाइन और ब्रोकन लाइन। जनरली हम ऐसे दिखाते हैं इसको। समझ में आ रहा है क्या ये वाली, यू कैन ऑल्सो हैव दिस वन। सो थर्ड रूल, हेवी और थिक लाइन, कौन सी वाली, हेवी और थिक ना। हेवी और थिक का मतलब ये होता है कि जैसे हमने उसको लिखा बिलो द प्लेन, ये क्या रहेगा फिर आपका अबव द प्लेन। और क्या बोल सकते हैं इसको, नियरर टू ऑब्जर्वर, नियरर टू ऑब्जर्वर, एंड दैट कैन बी इंडिकेटेड बाय द थिक लाइन। एग्जांपल, थिक लाइन का मतलब क्या होता है, ये वाले, इसको बोलते हैं थिक लाइन। ठीक है, द फोर्थ वन दैट इज व्हाट, नॉर्मल लाइन इन अ बॉन्डिंग। नॉर्मल लाइन का क्या मतलब होता है, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल मीन्स इन अ प्लेन, नॉर्मल लाइन। So normal lines are nothing but the what, in plane, and we have that normal lines are nothing but the what, your single line like this one, not thick, not your dash one. It's called simple normal line, which indicate it is in a near, it is in a plane now. Now, sometime empty type of what wedges are also be there now. Empty wedges, empty wedges का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल में पांचवा पॉइंट लिखता हूँ 5, so that is called as empty wedge now, empty wedge. So that indicate that it is also equivalent to what, your broken line, equivalent to broken or dash line, broken और particular dash bar, जिसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, या जो सेकंड नंबर का जो है उसी के जैसा है आपका, बट इसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है। सो लुक एट दिस वन नाउ, ये इसको बोलते हैं एम्प्टी वेज, जो किसके जैसा है, विच इज इक्विवेलेंट टू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मतलब बिलो द प्लेन, किसके जैसा है ये, बिलो द प्लेन नाउ। और कभी आपने देखा होगा कि इन सम टाइम इन अ मॉलिक्यूल व्हाट इज 6 नंबर, द वेवी लाइन इज यूज्ड नाउ। वेवी लाइन मतलब क्या होता है, वेवी लाइन। सो वेवी लाइन का मतलब ये है कि एक कैसे तो वेव के जैसी लाइन कभी बॉन्ड पे दिखाई जाती है। सो इसका मतलब क्या होता है, in this molecule or such a type of what orientation, such a type of presentation indicate that so the stereochemistry is not defined, वो मे बी फ्रंट हो सकता है, मे बी बैक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, stereochemistry not defined, मे बी फ्रंट और मे बी बैक। तो क्या हो सकता है, फ्रंट भी हो सकता है और ये जो है वो बैक भी हो सकता है। तो कितने हैं वेज प्रेजेंटेशन, कैसे है इसके रूल्स। तो वेज में हम क्या करते हैं, कुछ बॉन्ड को जो है वो हेवी या ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इसमें तीन टाइप की अलग अलग बॉन्डिंग है। एक तो सबसे पहला ब्रोकन लाइन, जिसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। एक होता है थिक लाइन, जिसका मतलब होता है अबव द प्लेन। एक होती है नॉर्मल लाइन, जो होती है प्लेन में। और कुछ जगह पे एम्प्टी लाइन, एम्प्टी वेज भी यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकन लाइंस। ओके, Yes, sir. सो ये जो रहेगा आपका ये वाला जो प्रेजेंटेशन है या मॉलिक्यूलर प्रेजेंटेशन है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट द वेज नाउ।
अब इससे कुछ अपन एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये हमको यूजफुल रहेगा. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल. सो आई हैव दैट मीथेन मॉलिक्यूल ऐसे. So and I will give the numbers to that hydrogens now which is attached this one. So number कैसे रहेंगे? Suppose example ये हाइड्रोजन जो रहेगा मेरा, this is 1, this is what 2, this is what 2 now, this is 3 and this is 4 now. अब ये जो मॉलिक्यूल दिखाया गया है ये सिर्फ लाइन से दिखाया गया है, बराबर है. So they are all hydrogens are on showing on this molecule on a single line now, in simple normal line that indicate that your whole molecule is on the plane, on a surface. But actually जो है this molecule is cannot be like that. This molecule is oriented in such a way that because it is a non-plane molecule, and for a non-plane molecule you must have this type of the chemistry. Where are the hydrogen now? This is one hydrogen, second hydrogen, third hydrogen, and this is my fourth one. I will give the numbers to that particular hydrogens now. Example, this is my 1, this is my 2, this is my 3, and this is my 4. Now this molecule indicate that your hydrogen 4 is present in a Below. dash line, while hydrogen 3 is present in a thick line. So that dash lines are nothing but the below the plane. That thick lines are nothing but the above the plane. And these two hydrogen, that is H1 and H2, are in a same plane, or that is on a plane. So basically half of the molecule on a board and half of the molecule is out of the board now. So in plane and out of plane. Okay. Yes, sir. If you take the mirror image of that molecule, what happened now? So if I just place the mirror in front of that molecule now. So this is example my mirror now. Now what happened now? So your whole molecules get in this fashion. This is my carbon. These are two hydrogen. This is what hydrogen now. And here is what the thick line. Again, I just give the numbers to that particular hydrogen. This is my one hydrogen, second hydrogen, third hydrogen, and this is fourth hydrogen. And the numbers are with respect to that. This is a 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So if I showing the mirror plane symmetry, so this molecule again show that the two hydrogens which are out of plane. So ये जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा? This is out of plane रहेगा. और ये जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? आपका इन प्लेन रहेगा. So that dotted line indicates it is below the plane. Thick line indicates it is above the plane. So here this dotted line is nothing but the below the plane. This indicate that above the plane, while the simple line indicate that the atom or whatever is present on that particular bond on a plane now. Okay, on the plane or on the surface. Yes, sir. Now from that we have different examples. So let's take the example of lactic acid now. Lactic acid. So lactic acid is a molecule where it is a bifunctional molecule. And you know that bifunctional molecule means, suppose this is my carboxylic acid, this is my CH3, and this is my OH now. This is what alpha hydroxy propanoic acid. And this molecule has a chiral example. We'll discuss about the next in the next part. That is chiral center, etc. So that molecule can be represented in a Wedge formula now. So there is a one hydrogen at here now. This molecule is present. This is a 3D molecule now. Now how we can explain this molecule in 2D board? So look at this molecule. Suppose this is my carbon here, and these are this is also what carbon. Look at these hydrogens. This is what hydrogen.
This is what the OH. Here is what CO2H group is there, and this is last is a methyl group. If I just pass the plane to that molecule, so I will get hydrogen. This is my OH. This is my 2CO2H, COH, and this is my CH3. Now this example is also what showing the same property. So out of this, half of the molecule is on the board and half of the molecule is on the out of board. And that molecule is represented in a various way now. Okay. So example, you can take this model also. You can take this model also. So let's see. Suppose this molecule is also be present in this fashion also. COH, this is CH3, this is H, and this is OH. Okay. Similarly, that molecules can be drawn like this is what COOH, this is what CH3, this is what OH, and this is what H. Now look at the bond which are explaining here. So this is the central carbon, right? And here that can be explained via. Now this presentation is different, okay? Now this presentation called as a Fischer. We will discuss Fischer in the next part, okay? But before that, you must aware about that ki any tetrahedral carbon. So you can also mention that lactic acid like this fashion now. So here, like this one. This is also tetrahedral carbon. Here the hydrogen. Suppose example, this is my OH. This is what CO2H group, and this is what CH3 now. Okay, so this is what the lactic acid, and you can use that lactic acid for the purpose. You can explain 3-dimension molecule onto the 2D board now. Again, that molecule indicate that there are 2 bonds which are in a plane and 2 bonds which are out of plane now. So these 2 bonds are in a plane and these 2 bonds are out of plane. Got it? Yes, sir. But this example is a Fischer example. This model is called as a Fischer model. And Fischer model, look at this example now. Fischer model is nothing but the what? It is only 2-line model now. So one vertical line and one is horizontal line. The number of crosses are nothing but the number of chiral center. All the carbon should be on that vertical line. So example, look at this one. COH is there, carbon is there, carbon is there. All the carbon should be on vertical line. And whatever groups are present, we have to mention on the horizontal line. We'll discuss the Fischer one. Okay, don't be confused with this Weige and Fischer. So Weige is completely different, and Fischer is also is a different one. Now, what about can you use that same presentation on sp2 hybridized molecule? Yes. So for sp2 hybridized carbon, we can also use the Weige presentation. So carbon-carbon double bond. You know that carbon-carbon double bond is a planar. Carbon-carbon double bond is a planar molecule. So it's not have such kind of phenomena. But if you see the actual carbon-carbon double bond, you can observe that like this one. This is what carbon-carbon double bond. And that molecules can also be used in this fashion also. Look at this one. So this front 2 group or bonded atom, which are what? Like this. Basically, this molecule is a planar. But if I am observing from here now, or if I am observing from here now, if I am observing from here, so this molecule is a planar. All are in a plane. But when I observe from here, so these 2 groups or bonded atom, these are away from my observation, and these 2 are nearer to observation, nearer to observer. And the best example to explain stereochemistry in olefins, it is an sp2 hybridized molecule that is early now, carbon-carbon double bond, and this is an example of a cumulated double bond. That means a molecule having continuous double bonds are there, that will be called as a cumulated double bonds now. Cumulation means what? Your continuous double bonds are there. So if what any double bond in a plane, then its substituent should be out of plane. Remember, if अगर आपका डबल बॉन्ड प्लेन में है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को किस में दिखाया गया है? डबल बॉन्ड को हमने दिखाया गया है कहाँ पे? लाइन में. मतलब ये कहाँ पे है? इन द प्लेन है. जब डबल बॉन्ड आपका प्लेन में रहेगा तो जो सबस्टेंस उसके रहेंगे वो कहाँ हो जाएंगे? आउट ऑफ द प्लेन दिखा सकते हैं. और अगर आपका डबल बॉन्ड ही आउट ऑफ प्लेन अगर होता है, एग्जांपल ये, इसका मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, या इसका मतलब हो गया फ्रंट बैक, तो यहाँ के जो प्रेजेंट होने वाले जो ग्रुप्स या एटम्स रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे. So remember these 2 concepts now.
इफ अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका प्लेन में है तो जो भी सब्सटेंस रहेंगे वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, और इफ अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये आउट ऑफ प्लेन रहेगा तो आपके जो हाइड्रोजन रहेंगे वो कहां पे रहेंगे, इन प्लेन में रहेंगे। ठीक है, now in the case of what allene, now this molecule is called as a allene. Allene is a very unique example. allene में क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया। सो देखो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सो इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस इज माय कार्बन, एक बॉन्ड मैंने बहुत थिक निकाला, दूसरा निकाला मैंने डॉटेड। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भेज दूंगा, आपने इसको देख लेना। और ये कार्बन ऐसा रहेगा, मतलब कार्बन कार्बन जो दो डबल बॉन्ड है उसमें से एक डबल बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन रहेगा और एक डबल बॉन्ड जो आपका इन प्लेन रहेगा। यानी कि उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन, दिस इज माई कार्बन, दिस इज सिंपल डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रहेंगे मेरे हाइड्रोजन। देखो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट अलीन नाउ। और इस केस में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा उसके हाइड्रोजन जो है वो इन प्लेन रहेंगे। क्या रहेंगे उसके, क्योंकि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी ऑन बोर्ड एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी ऑन आउट ऑफ बोर्ड। दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो वो कैसा है, इन प्लेन है। ये कैसा है, इट इज इन प्लेन। तो उसके जो लगने वाले जो हाइड्रोजन रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, आउट आउट ऑफ ऑफ प्लेन। प्लेन। सो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी ऑन अ बोर्ड, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी ऑन आउट ऑफ बोर्ड। तो चाहे आप अल्कीन ले लो चाहे आप अलीन ले लो, यू गेट द सेम कंसेप्ट। ओके, यस सर। सो अगर आप इस हाइड्रोजन को नंबर्स देते हैं तो इसमें से पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन आपका प्लेन में है कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल मैंने इसको लिखा 1 एंड 2 नाउ। सो हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2 आर इन अ प्लेन, while हाइड्रोजन 3 एंड 4 आर आउट ऑफ प्लेन। और ये दोनों जो बॉन्ड है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस फर्स्ट कार्बन कार्बन एंड सेकंड कार्बन कार्बन, तो इसके जो ऑर्बिटल रहेंगे और इसके जो ऑर्बिटल रहेंगे दोनों कार्बन के, ये एक दूसरे के साथ कैसे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब पहला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन उधर वाले 3 और 4 ये दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ, दे आर इन अ प्लेन। आप थोड़ा मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, आपको समझ में आएगा कि अलीन कैसे होता होगा मॉलिक्यूल। सो और जो दूसरा बॉन्ड है जो लाइन में दिखा गया है वो बॉन्ड और आपके हाइड्रोजन 1 और 2 वो प्लेन में होते हैं हमेशा, मतलब वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर कौन कौन रहेगा आपका, ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये दोनों हाइड्रोजन के सेट भी अलग अलग रहेंगे। ओके, यस सर। Yes, sir. सो वी हैव वेरियस एग्जांपल एंड इसको और भी अच्छे तरीके से आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल, दिस इज माय कार्बन कार्बन कार्बन, ये मैंने निकाल लिया मेरा कार्बन। ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं इसको, मुझे और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है तो आई विल यूज दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेट नाउ। सो दिस फॉर्मेट इंडिकेट दैट this carbon carbon double bond is out of the plane now and this carbon carbon bond is in plane। अब पहला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो आउट ऑफ प्लेन है, तो इसको लगने वाले जो हाइड्रोजन रहेंगे वो भी आपकी कैसे रहेंगे, आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे। पहला वाला लास्ट के साथ और लास्ट वाला जो है वो पहले के साथ, दिस वन। ऐसा आपका मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एज ए अलीन नाउ। सो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इसके साथ प्लेन में रहेगी, मतलब एक साथ रहेंगे वो, और इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो रहेगी इनके साथ। ऐसे वाला ये सिंपल सा कंसेप्ट है, किसमें लगा हुआ, अलीन में लगा हुआ। आप इसको मिरर इमेज भी डाल सकते हैं। अगर आपने मिरर इमेज डाला तो ये कैसे बनेगा, दिस इज हाइड्रोजन, मैं आपको अलीन का एनिमेशन भेजूंगा, आपको आसानी से वो चीजें जो है वो जल्दी से समझ में आएगी कि अलीन में होता क्या है। तो इफ आई पास दैट मिरर प्लेन थ्रू दिस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, सो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, दिस इज कार्बन, ये हो गया ऐसे वाला, ये आ गया इधर। ठीक है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज इन ए प्लेन। फिर आपका आ गया ये थिक बॉन्ड और ये आ गया ऐसे।
ओके, दिस इज अबाउट व्हाट द अलीन नाउ। अलीन और भी पढ़ना है हमको, अलीन ने छोड़ा नहीं है हमको अभी, बट अलीन को वेल एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट वेज प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा साइक्लो, कोई भी साइक्लिक मॉलिक्यूल ना हो, जैसे अब ये दिखता क्या है साइक्लिक मॉलिक्यूल, बट इस पे हर कार्बन पे जो लगे हुए हैं वो दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये जो दो हाइड्रोजन की जो केमिस्ट्री है वो कैसे होती है, एक आपका ऐसे रहेगा, तो एक आपका कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। वन हाइड्रोजन इज हियर, सेकंड हाइड्रोजन इज हियर ना। सिमिलरली इधर भी वैसे रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक के लिए अप्लाई हो रहा है, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा। और उसी तरह से आपका एक यहाँ रहेगा तो आपका दूसरा यहाँ रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो कितना ये है, वो अपने को लगता है ऐसे ही है, लेकिन जैसे तुमने एक आधा कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया तो गड़बड़ करता है पूरी। एग्जांपल लेता हूं मैं, ऐसे ले लो कोई एग्जांपल, ये वाला। अब जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोक्सी ग्रुप ना, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर आ गया तो मैं सपोज कोई कार्बन पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया OH। तो ये जो कंपाउंड है ये इसका मिरर इमेज जो रहेगा वो कैसे रहेगा आपका, ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसे कोई कंपाउंड दिए जाते हैं तो वी हैव टू मेंशन द रिलेशनशिप नाउ। एग्जांपल मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये दे दिया आपको, ऐसा एक मॉलिक्यूल दे दिया OH, ठीक है। और यहाँ पे कोई तो भी मेरा कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ, और एक दूसरा मॉलिक्यूल दे दिया मैंने, ये वाला। तो क्या ये दोनों सेम दिखते हैं क्या, सेम होते हैं क्या ये दोनों? वेदर दे आर सेम और डिफरेंट? They are mirror image. यस, दे आर मिरर इमेजेस, एक दूसरे के क्या है वो मिरर इमेजेस। तो उसको अपन सेम नहीं बोल सकते उनको, बराबर है। सेम का मतलब क्या होता है कि जैसे एसीटोन, अगर एग्जांपल ले लिया मैंने एसीटोन, तो एसीटोन एसीटोन के जैसे दिखेगा ना। अगर आपने इसको मिरर इमेज भी बनाया तो ये वैसे रहेगा। मैं दूसरे एसीटोन को उठा के पहले एसीटोन पर रख देता हूँ तो हो जाएगा सेम, इसको बोलते हैं सेम मॉलिक्यूल। बट क्या मैं ये दैट मॉलिक्यूल को इज उठा के नॉन इस पर सुपर इम्पोजेबल। हाँ, तो वो कंसेप्ट अभी जो आएगा आपका, मतलब हम उस हिसाब से भी Yes. उसको बता सकते हैं कि वो सेम है कि नहीं है। एग्जाम्पल मैंने और एक मॉलिक्यूल आपके सामने डाल दिया, तो ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया। देखो डबल बॉन्ड आ गया इधर, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो अब ये तीनों एक दूसरे के साथ अलग अलग हो गए। और एक अगर आप मॉलिक्यूल निकाल दे तो ये चार अलग अलग हो गए मॉलिक्यूल आपके पास। सो लुक एट दिस मॉलिक्यूल नाउ, देखो सब अलग अलग हो गए यहाँ। तो इन सबका आपको क्या निकालना है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो पहला मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, और चौथा मॉलिक्यूल ये है। तो आप इनको क्या करो, इनको चारों को ले लो साइड में, और इन पे थोड़ा सा सोचो कि ये चारों मॉलिक्यूल जो है ये क्या रिलेशनशिप दिखाते हैं एक दूसरे के साथ। क्या मिरर इमेज है, या कुछ और है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो पहला और तीसरा जो है ना, पहला दूसरा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया, बराबर। हाँ सर, और तीसरा यस चौथा भी सर। मिरर ही। तीसरा कैसे हो नो सकता है मैडम, मिरर इमेज, नहीं, तीसरा तीसरा नहीं है और ना। चौथा। वो एक बिलो और तीसरा। अबो है। हाँ, तीसरा जो बॉन्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप तीसरे, देखिए आप। हाँ अब देखो बेसिकली क्या होता है, हाँ। पहले को अगर हम रोटेट करेंगे कितने से, 180 से रोटेट करेंगे ना, तो बेसिकली हमको मिलेगा तीसरा। रोटेशन ऑफ दैट फर्स्ट मॉलिक्यूल विल गिव राइज टू द थर्ड वन। और चौथे वाले को अगर आपने रोटेट किया तो आपको पहला मिल जाएगा। मतलब चौथे वाले का 180 से रोटेट किया आपको आपने, तो उसको पहला मिलेगा। पहले वाले को 180 से रोटेट किया तो आपको मिलेगा कितना, थर्ड भी मिलेगा, फोर्थ, थर्ड फोर्थ दे आर सिक्स। ये मिरर इमेज इनको बोल सकते हैं हम, थर्ड और फोर्थ को क्या बोल सकते हैं, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, थर्ड एंड फोर्थ, व्हाइल फर्स्ट एंड टू आर आल्सो मिरर इमेजेस। मैं वही बोल रही थी सर कि थर्ड एंड फोर्थ दे आर मिरर इमेज। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ आर मिरर इमेजेस। सर हमें लगा कि वो ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड है ना फोर्थ में, वो एक आपने ठीक निकाला है और एक थोड़ा सा लाइट निकाला है, तो हमें लगा कि नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग वैसा है क्या। ओके ओके ओके। वैसा नहीं, ये ऐसे चार मॉलिक्यूल है। तो इस पे थोड़ा सा और सोच सकते हैं आप
और बेसिकली हमको क्या करना है, कंपाउंड्स जो दिए हैं उनका सिर्फ आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो पहला मॉलिक्यूल ये रहा मेरा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ये रहा, तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो ये रहा, और चौथा जो रहा वो ये रहा। सिमिलरली व्हाट वी हैव बाइसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइक्लोहेक्सेन में टोटल 6 जो है वो एक्सियल होते हैं और 6 जो है वो इक्विटोरियल होते हैं। तो 6 एक्सियल कौन कौन से होंगे, देखो दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। सो टोटल कितने हैं इसमें पोजीशन, देयर आर 6 आर एक्सियल एंड 6 आर व्हाट, इक्विटोरियल। तो 6 में से क्या होते हैं, 3 आर अबोव, 3 क्या रहेंगे इसमें से अबोव और 3 क्या रहेंगे बिलो। सिमिलरली इसमें भी 3 अबोव रहेंगे आपके पास और 3 क्या रहेंगे आपको बिलो रहेंगे। अब पहले बात करते हैं एक्सियल की। देखो एक्सियल के 3 मैंने निकाले हैं ऊपर, अभी 3 कहाँ पे रहेंगे, फिर ये 3 निकालता हूँ ग्रीन से, पहले वाला 1, दूसरे वाला 1, तीसरे वाला 1। ये इन 3 पोजीशन को हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। जो ग्रीन से निकाला हुआ है 1 और 1 से निकाला मैंने ब्लैक से निकाला हुआ। अब रहा सवाल इक्विटोरियल पोजीशन, इसमें भी 3 ऊपर होने चाहिए और 3 नीचे। तो इक्विटोरियल कैसे निकाल दूंगा, देखो मैं इसको 1 लगा दूंगा, 1 हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया और उसके बाद हो गया तीसरा। तो ये जो 3 निकाले वाले हैं इस कलर से, तो ये हो गया आपके 3 बिलो वाले, नीचे वाले। अभी 3 अबो वाले कैसे रहेंगे, सो 3 अबोज आर, 3 अबो कैसे रहेंगे, अभी ये वाला लेता हूँ, एक इधर है, दूसरा इधर है और तीसरा इधर है। समझ में आया क्या, ऐसे टोटल कितने पोजीशन है इसमें, टोटल 3 3 6 3 9 3 12। फर्स्ट आर 6 एक्सियल, 6 आर इक्वेटोरियल। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप कंपाउंड्स में जनरली अपन यूज करते हैं इसको। सो अभी एग्जांपल है मेरे पास डेकालिन का एग्जांपल है। डेकालिन का मतलब होता है इट इज अ फ्यूज्ड साइक्लोहेक्सेन, ये वाला। और इसको जब मैं लिखता हूं तो मुझे ऐसा लिखना आएगा, ऐसा। ये हो गया उसका चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म में जब मैं ड्रा करता हूं तो मेन आता है सवाल इन हाइड्रोजन का। सो जो नीचे ऊपर हाइड्रोजन लिखे है इसका मतलब ये ऊपर है, मतलब क्या हो गया, ये अबोव लिखा हुआ है और ये जो है ये कैसा है आपका बिलो है। फिर हमको ये वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पे कैसे दिखाओगे इसको, सो लुक एट दिस वन। सपोज एग्जांपल ये मेरे पास 2 6 मेंबर रिंग लगे हुए, तो मैं इसको दिखाता हूँ, देखो ऐसे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिस कंपाउंड, सिस डेकालिन बोलूंगा मैं इसको। इस कंपाउंड का नाम है डेकालिन। एक कंपाउंड में निकाल सकता है जहां पे दोनों हाइड्रोजन जो है वो आगे पीछे है, मतलब एक अबोव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है। तो इसको क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस। सिस कंपाउंड को और एक तरीका है दिखाने का, इफ आई मेंशन दैट डॉट, इसका मतलब ये भी सिस होता है। और अगर सिर्फ एक ही डॉट रहेगा सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांस। सो दैट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द वेज। तो वेज प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे वो हम कैसे दिखाते हैं, लाइन से दिखाते हैं। वे कौन सी लाइन है, थिक लाइन एक यूज कर रहे हैं हम इसमें, एक यूज कर रहे हैं हम डॉटेड लाइन। थिक लाइन का मतलब होता है कि जो अबोव द प्लेन है और डॉटेड लाइन का मतलब होता है जो बिलो द प्लेन है। ओके यस सर। अब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें ये सब केमिस्ट्री आपको यूज करनी है। सो बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स निकालते हैं हम ऐसे। जब बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल निकाला जाता है, ये वाला ऐसे निकाला जाता है बाइसाइक्लिक, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे कंसिडर करोगे कौन सा बॉन्ड अबोव द प्लेन है, कौन सा बॉन्ड बिलो द प्लेन है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो हमने निकाली ना रिंग ऊपर, ये वाला जो बॉन्ड निकाला हुआ है ये वाला, तो ये वाले को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट इज अ 6 मेंबर रिंग ना। पहले तो 6 मेंबर रिंग निकालो बाहर, ये वाले, ये हो गई 6 मेंबर रिंग। और जो आपका जो बीच का जो कार्बन है ये इसको ऐसे दिखाना होता है, दिस वन।
तो बेसिकली होल रिंग आपकी प्लेन में है, बट जो आपका जो ब्रिज हेड कार्बन जो है आपका वो आउट ऑफ प्लेन जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो है, या अपन इसको ब्रिज बाइसाइक्लिक बोल सकते हैं इनको। और इस कंपाउंड का नाम है नॉन बोर्नेन। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल, अब जो हमने यहाँ पे जो यूज किया है इनको हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बोलते हैं। उसी तरह से जो ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो रहेंगे ना, उनमें जो हम यूज करते हैं कंसेप्ट, दैट इज व्हाट एक्सो एंड एंडो। दैट इज व्हाट एक्सो एंड एंडो। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है। एग्जांपल, ओपन बुक, आपके पास बुक इमेजिन करो कि ओपन बुक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। एक्सो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब क्या होता है, मतलब नीचे के साइड में जा रहा है। सपोज एग्जांपल, यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ और यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ। सो दिस वन इज कॉल्ड एज एक्सो नाउ एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज ए एंडो पोजीशन। एंडो पोजीशन मतलब जो पोजीशन आपकी नीचे की तरफ जाती है उसको अपन एंडो बोलते हैं, जो ओपन बुक की तरफ जा रही है। और एक्सो मतलब जो बाहर के साइड में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये रिलेशनशिप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, सिस ट्रांस तो अभी आपको आया नहीं है क्योंकि वो उसका तो काम नहीं है अभी आपको। एक्सियल और इक्वेटोरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी पोजीशन, एक्सियल और इक्वेटोरियल। हमने ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड में पढ़ा था कि ओपनिंग विल बी एक्सियल ओपनिंग, तो वो वाला कंसेप्ट है। SN2 रिएक्शन में हम एक्सियल इक्वेटोरियल का कंसेप्ट यूज करते हैं। मैंने फिर बताया आपको एक्सो और एंडो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है दैट इज कॉल्ड सिन एंड एंटी। सिन पोजीशन किसको बोलेंगे, एंटी पोजीशन किसको बोलेंगे। तो सिन और एंटी उस कंपाउंड में यूज किया जाता है जहां पे बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल हो। क्या हो वहां पे, बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल हो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, जरूरी डबल बॉन्ड है। अब ये जो हाइड्रोजन दिए वाले हैं ये दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। दीज हाइड्रोजन आर नॉट सेम। व्हाई, दिस हाइड्रोजन इज on a same side to that double bond, but this hydrogen is opposite to that double bond. तो इसलिए इस हाइड्रोजन को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज सिन, और इसको क्या बोलूंगा मैं, एंटी। सो सेम साइड टू द डबल बॉन्ड एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द डबल बॉन्ड, इन ऐसे सिस्टम को बोला जाता है सिन एंड एंटी ना। ओके, यस सर। और भी बहुत सारे रिलेशनशिप जैसे प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल हम आगे पढ़ने वाले, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रो एंड थ्रियो। इरिथ्रो और थ्रियो ये सिर्फ कहाँ पे यूज करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में सपोज अगर दो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड में प्रेजेंट है और फिशर प्रोजेक्शन में दो अलग अलग उसमें प्रेजेंट है, तो पहला और दूसरा कंपाउंड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। समझ में आ रहा है कैसे अलग अलग हो गया। पहले इसमें वो दोनों सेम साइड में है और दूसरे इसमें वो दोनों सेम साइड में है क्या, दे आर अपोजिट। तो पहला जो कंपाउंड हो गया उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रो। दिस विल बी कॉल्ड एज एरिथ्रोना। और इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड थ्रियो आइसोमर। इसको आप मिजो मिजो भी समटाइम बोल सकते हो। मिजो अगर दोनों एक्स एक्स अगर सेम रहेगा तो मिजो हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई ले सकते हो या एक्स भी कंसिडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। So cis trans is one pair, axial equatorial is another pair, exo-endo is another pair, sin anti is also what another pair now. उसके बाद है आपका कौन, इरिथ्रो और थ्रियो। तो ये सब पोजीशन जो है ये हमको आगे आगे मिलते रहेंगे। अब इसमें से ऐसा कौन सा जो आपको पता नहीं है, यस, सिस ट्रांस तो आपको पता है, इट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अरेंजमेंट इन अ स्पेस। एग्जांपल मैंने लिखा है आपके सामने, आप कोई भी ले सकते हैं, नॉट ओनली दिस, आप कोई भी ले सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में। यस सर। यस सर। So what this is about the वेज प्रेजेंटेशन। सो वेज में क्या क्या यूज किया गया, कैसे एग्जांपल्स हम लेंगे। और जनरली वेज पे क्वेश्चन कैसा आता है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंपाउंड्स, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंपाउंड्स, so whether they are homomer, whether they are enantiomer or whether they are distereoisomers। तो हम अभी जो नहीं लगा सकते उसको, क्योंकि अभी हमारा होमो डाइस्टेरियोसोमर और एनांटियोमर हमारा बाकी है। इस वजह से अभी अपन उस वे से नहीं सोचेंगे इसको, सिर्फ हम ये सोचेंगे कि क्या ये कंपाउंड सेम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ वर्ड वेज नाउ। लेकिन जब हम ये चारों पांचों प्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये आपका कैसा रहेगा। बट बिफोर दैट जस्ट अप्लाई दैट रूल ऑन टू द सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यस सर। यस सर। तो फिलहाल में आपके पास ये टास्क है कि आपको सिर्फ उसको अप्लाई करके आना चाहिए किसी भी, कौन सा बॉन्ड कैसे लिखना है या
बेसिकली आप जितने मॉलिक्यूल लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका रिप्रेजेंटेशन, जिसका नाम है फिशर। फिशर, इसको जनरली हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, या आप इसको रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल को दूसरे वे में लिखना। चलिए बात करेंगे अपन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन को एक सिंपल वे में फ्लैट मॉडल बोला जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए फ्लैट मॉडल। मतलब यहाँ पे कोई थिक व डॉट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और जनरली ये जो है ये सिर्फ sp3 वाले के लिए हम अप्लाई करते हैं, इसमें ज्यादा तो इसमें कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सारे के सारे एटम या मॉलिक्यूल जो है, या जो भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे एटम जितने भी प्रेजेंट है, वो सब एक ही प्लेन में आने चाहिए ऑन द बोर्ड। नाउ दैट इज सिंपल कॉल्ड एज ए फिशर प्रोजेक्शन, एंड सो इट्स कॉल्ड एज ए फ्लैट मॉडल। फ्लैट का मतलब क्या होता है? तो फ्लैट का मतलब ये होता है कि सब एक लाइन में आ जाना, सब एक प्लेन पे आ जाना। ओके, सो बाय टेकिंग ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर इन अ ऑन द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है? ऑल द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑल द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे रहेंगे आपके ये? ओनली ऑन द प्लेन। ठीक है, या जो भी बोर्ड रहेगा आपका, सब सारे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है आप मॉलिक्यूल के, सबको आपको एक इसमें लिखना है। अब इसके आपको रूल्स, पहले सबसे पहले तो रूल्स आपके पास 5-6 रूल्स आपको पता है। रूल्स आपको याद करने, खाली इसके मतलब आपको अप्लाई करना है, रूल्स याद भी नहीं करने। तो एक बात याद रखना कि जो फिशर प्रोजेक्शन जो है आपका, फिशर प्रोजेक्शन इज व्हाट रिलेटेड टू द फ्लैट मॉडल। एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स इट। चलिए मैं रूल्स फटाफट बता देता हूं आपको, उसको नोट डाउन कर लो। फिशर प्रोजेक्शन जो है ये जनरली होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्केलेटन के लिए। सबसे पहला रूल क्या है आपका? फिशर प्रोजेक्शन फॉर किसके लिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन स्केलेटन। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम इसको? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए। ओके, दूसरी बात आती है कि इसमें क्या होती है, एक ही सिर्फ हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन, ओनली वन वर्टिकल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन, ओनली वन वर्टिकल लाइन एंड मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड व्हाट? मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब ये होता है कि इस कंपाउंड, इस प्रोजेक्शन में या इस प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं ये वाली टेक्निक। वर्टिकल लाइन रहेंगी और कई सारे आपके ऐसे वो होंगे, क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जितने क्रॉसेस रहेंगे ना, ये दिस क्रॉसेस आर नथिंग बट द कायरल सेंटर। समझ में आ रहा है क्या? दिस क्रॉसेस आर नथिंग बट द कायरल सेंटर। फिर अगर एक आधे मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था लैक्टिक एसिड का, तो उस लैक्टिक एसिड में एक ही कायरल सेंटर था हमारे पास, ये वाला। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा कार्बन जिसमें चारों भी अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट हो। तो देखो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन लगा दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दी मैंने। तो ये जितने क्रॉसेस रहेंगे उतने कायरल सेंटर रहेंगे। आ रहा है क्या? यस सर। अब हम बात करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो मिल रही है उसको अपन क्या बोला है? क्रॉस। उसके बारे में भी लिखेंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां मीटिंग होती है उन दोनों की, उसको वो वाला जो पार्ट है, वो वाला जो कार्बन है, वो जनरली क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन होता है। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और क्या बोल सकते हैं इसको? मीटिंग ऑफ टू लाइंस। मीटिंग ऑफ टू लाइंस, कौन कौन से लाइन? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? दैट इज कॉल्ड एज ए क्रॉस। दैट इज कॉल्ड एज ए क्रॉस। और ये यूजुअली किसका होता है? ये इट इज यूजुअली है sp3 हाइब्रिडाइज असिमेट्रिक कार्बन। व्हाट इज असिमेट्रिक नाउ? जिसमें सिमेट्री नहीं है। गॉट इट? असिमेट्रिक का मतलब होता है ऑल फोर पोजीशंस ऑफ दैट कार्बन आर डिफरेंट। गॉट इट? यस सर। अब मेन सवाल आता है वर्टिकल लाइन पे क्या क्या रहेगा और हॉरिजॉन्टल पे क्या क्या रहेगा। सो ऑल द कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइंस। जितने भी कार्बन रहेंगे उस कंपाउंड में के, वो कहां पे होने चाहिए? ऑल द कार्बन शुड बी ऑन, किस पे रहने चाहिए वो? वर्टिकल लाइन। अब अगर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है जिसमें
लैक्टिक एसिड का एग्जांपल हम लेते हैं, COOH, फिर आ गया इधर CH2, इधर CH एग्जांपल OH। अब इसमें तो तीन कार्बन प्रेजेंट है, तो हम 3 कार्बन वर्टिकल में डाल सकते हैं। 3 कार्बन, पहला आएगा CH3 आएगा, फिर बीच वाला कार्बन, फिर COH, और एक और मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आ गया COH, यहाँ पे आ गया CH। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ना? अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलता है कि सारे कार्बन कहाँ पे होने चाहिए? ऑल द कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, ऑल द कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। तो जब कार्बन सब एक लाइन में रहेंगे तो इसका मतलब ये भी होता है कि कौन सा कार्बन पहले आना चाहिए। फिर नेक्स्ट रूल हमारा आएगा, हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन शुड बी ऑन टॉप। कौन सा कार्बन? हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कहां पे होना चाहिए? शुड बी ऑन टॉप। किसके टॉप पे? वर्टिकल लाइन के टॉप। वर्टिकल लाइन के। इसका मतलब लैक्टिक एसिड जो है इसमें एक COH हाईली ऑक्सीडाइज्ड है और एक मिथाइल है, तो COH सबसे पहले आएगा, इसलिए प्रेजेंटेशन ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, ऐसा रहेगा। आ गया समझ में आपके? यस सर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका? अगर किसी मॉलिक्यूल को आप 180 से रोटेट करते हैं, 180 से अगर आप रोटेट करते हैं, सो दैट विल प्रोड्यूस द होमोमर। रिमेंबर, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करोगे कितने डिग्री से? 180 से, तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? वो आइडेंटिकल बन जाता है। होमोमर का मतलब होता है आइडेंटिकल। रोटेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल वाया 180 डिग्री, दैट विल बी गिव्स द होमोमर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी मॉलिक्यूल को 90 से रोटेट करते हैं, it will gives the enantiomers. We will discuss that, but before that just write down the rules of that molecule. Enantiomers, enantiomers are not identical. And one more important thing is what? Fisher, all the Fisher projection are eclipsed conformation. Eclipse हमने कभी सुना होगा, तो रूल में आपको लिखना पड़ेगा पहले। all the Fisher कैसे है? eclipsed. eclipse का मतलब ये होता है कि one behind other, एक के पीछे दूसरा है, that is called eclipse now. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। अब एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड को पहले तो आप ड्रॉ करो उधर, CH3, देन CH, दिस इज OH और COH। पहले इसको वेज में कन्वर्ट करो। वेज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये? दिस इज व्हाट CH3, दिस इज माय कार्बन एंड दिस इज व्हाट CO2H। तो वेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऐसे यूज करोगे। कुछ समझ में आएगा क्या किया मैंने इसको? Yes, sir. यस सर। सो अब यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा तुम्हारा कि हमको इसमें लेके जाना है नेक्स्ट मॉडल में, दैट इज कॉल्ड फिशर। तो फिशर में जब हम लेके जाते हैं तो पहले हम देखेंगे कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। कर दिया हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ, और जितने पैरेलल सेंटर है उतने रहेंगे क्रॉसेस, तो एक ही क्रॉस आएगा इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है? ऑल द कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। उसमें से भी देखना ये होता है कि ये कार्बन हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, ये कौन है आपका? हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये रहेगा मेरा COOH, और यहाँ पे रहेगा मेरा CH3 ना। समझ में आ गया? अब इस OH को मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे OH लिखा वैसे आपको भी लिखना है, आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि किसी भी फिशर का एक रूल और बाकी रहा हमारा कि किसी भी फिशर के मॉडल में अगर हम एक ग्रुप को भी अगर चेंज करते हैं तो हमको अलग टाइप का आइसोमर मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जनरली फिशर में क्या यस सर। होता है कि जब हम 3 ग्रुप बदलते हैं ना, एनी 3 ग्रुप एक्सचेंज, एनी 3 ग्रुप एक्सचेंज, देखो क्या क्या कर सकते हैं अपन। चारों को तो एक्सचेंज नहीं करना है, फिर आपको सेम मिलेगा। अगर आप 3 ग्रुप एक्सचेंज करोगे असिमेट्रिक कार्बन के ऊपर, अगर हम 3 ग्रुप एक्सचेंज करते हैं तो तुमको क्या मिलता है? दैट विल आल्सो गिव द होमोमर।
और अगर हम टू ग्रुप एक्सचेंज करते हैं, टू ग्रुप एक्सचेंज नाउ, if two group exchange अगर हम करेंगे, so that will produces the enantiomer. We will discuss that how enantiomer या तो फिर diastereomer. ये बात बहुत जरूरी है और आपको ये याद रखना। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर हम किसी भी फिशर प्रोजेक्शन के एक कार्य सेंटर पे तीन ग्रुप अगर बदल देंगे, तीन ग्रुप की पोजीशन अगर बदल देंगे, एक को कांस्टेंट रखे तो हमको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैंने H को कांस्टेंट रखा और OH को CH3 पे ला लिया, CH को COH पे लेके चला गया और COH को C3 पे ला लिया, तो आपको सेम मिलेगा वही। लेकिन अगर हम कोई ग्रुप अगर एक्सचेंज करते हैं तो तुमको जो मिलेगा वो इनएंशियोमर मिलेगा। मैं इसका मिरर इमेज लेता हूँ। क्या लूंगा इसका मैं? मिरर इमेज। आई विल टेक द मिरर इमेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपको क्या बोलने को टैक्स लग रहा है क्या? OH की Yes. पोजीशन बदल जाएगी सर। बराबर बराबर। ये OH आ गया मेरा इधर, ये आ गया इधर, तो ये रिलेशनशिप है इन दोनों कंपाउंड का, वो क्या हो गया? इनएंशियोमर्स हो गया। इनएंशियोमर्स हो गए। क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फिशर प्रोजेक्शन पे अगर दो ग्रुप एक्सचेंज करते हैं तो तुमको इनएंशियोमर या तो फिर डायस्टेरियोमर मिलते हैं। क्या मिलते हैं तुमको? आइदर इनएंशियोमर और आइदर व्हाट द डायस्टेरियोमर। लेकिन अगर आप तीन ग्रुप एक्सचेंज करोगे तो आपको होमोमर मिलेगा, मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड आपको मिलेगा जो जैसा था। तो समझ में आ रहा है हमने क्या किया है? हमने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को कन्वर्ट किया है किसमें? फिशर मॉडल में। और उस रूल्स क्या क्या है पर आपको कि हम सबसे पहले तो इसको लगाते, एक वर्टिकल लाइन रहेगी और कई सारे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे, कई सारे वर्टिकल लाइन और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जो मीटिंग हो रही है दो लाइन की उनको अपन क्रॉस बोलेंगे। जनरली वो होता है एसिमेट्रिक कार्बन। सारे के सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। उसमें से भी टॉप पे कौन होगा? जो हाईली ऑक्सीडाइज होगा। ये सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ पे? कार्बोनेट केमिस्ट्री में। ओके। यस सर। Yes, sir. अब फिशर प्रोजेक्शन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो ही टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, बस खत्म। फिर देखो क्या क्या होता है। इस सपोज अगर मेरे पास एक कार्बन है बीच में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ये वाले जो ग्रुप है जो वर्टिकल है ये हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होते हैं, बिलो द प्लेन होते हैं, और ये वाले जो है ये हमेशा अबव द प्लेन होते हैं। ये होता है फिशर। फिशर इज ओनली, अगर फिशर को आपने किस में कन्वर्ट किया? वेज में कन्वर्ट किया, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दो है, दिस वन इज अबव द प्लेन। कहाँ पे है ये? अबव द प्लेन। और ये जो मैंने निकाला ये होता है व्हाट? बिलो द प्लेन। तो एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो फिशर हम निकाल रहे हैं वो तो इक्लिप्स मॉडल है। इक्लिप्स का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के पीछे जिनका एंगल 0 होता है, 0 डिग्री, है ना, ऐसे वाले कंपाउंड। ओके। सो Yes, एग्जांपल Yes, sir. अगर एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, सपोज एक हाइड्रोजन मैं यहाँ निकालता हूँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ निकालता हूँ, तो मैं जब यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन जस्ट फ्रंट एंड बैक, एक के पीछे एक लगा हुआ है। हाँ। और इनका जो एंगल आप निकालोगे तो कितना आएगा? हियर थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज अगर हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्या हो जाएगा इन दोनों का रिलेशनशिप? अपोजिट। 180 का एंगल है, अपोजिट। 180. इनका angle कितना आपका? 180 का आ जाएगा, बराबर है। और सपोज अगर मैं कुछ अलग तरीके से इसको देखता हूँ, सपोज दिस इज वन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है। अब इनका क्या रहेगा रिलेशनशिप? कितना आएगा? ये 90 आ जाएगा, थीटा 90 90। 90. 90 आ Theta जाएगा, 90। ठीक है। तो जिनका एंगल 0 है उसको हम बोलते हैं इक्लिप्स। उनको क्या बोला हाँ। जाता है? दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स। और जिनका जो है वो क्या है? 180 है, तो वो हो गया स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। मतलब आप वो हम पढ़ेंगे न्यूमन में आएगा। कहाँ पे Yes, आएगा वो? न्यूमन। तो इन जनरली क्या होता है कि जब हम कोई फिशर ड्रॉ करते, एग्जांपल मेरे पास दो वाला फिशर मैंने ड्रॉ किया और मैंने इस पे ग्रुप्स लगा दिए। एग्जांपल मैंने इस पे एक कार्बन लगा दिया, इस पे एक कार्बन लगा दिया, ठीक है, और इस पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, एग्जांपल कुछ तो भी लिख दिया मैंने, XYZ। अब अगर मुझे एंगल इनके निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा इनके एंगल? लुक एट द एंगल्स पर्टिकुलरली हियर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा होता है 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो भी रहेगा 0 डिग्री, इसलिए इसको इक्लिप्स बोला जाता है। और सी और सी का जो एंगल अगर निकालूंगा वो भी हो जाएगा कितना? 0 डिग्री। 0। तो आप किसी का भी एंगल निकालो आपको क्या आएगा? 0 आएगा। और जिनका एंगल आता है वो क्या होते हैं?
इक्लिप्स। और इसलिए Eclipse, लास्ट रूल okay. में यहाँ पे लिखा है कि ऑल फिशर प्रोजेक्शंस आर इक्लिप्स मॉडल नाउ। ठीक है। Yes. दूसरी बात, वर्टिकल लाइन जो है ये कैसे होती है इन फिशर प्रोजेक्शन? वर्टिकल लाइन का मतलब वर्टिकल लाइन पे जो भी प्रेजेंट रहेगा वो कहाँ पे होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बिलो द प्लेन। अवे फ्रॉम और बिलो द प्लेन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका मतलब क्या होता है? अबव, Above the plane, above the plane, or अबव, या towards फिर उसको top, क्या बोल सकते हैं अपन? नियर टू ऑब्जर्वर। towards. Yes. तो किसी भी वेज का कन्वर्शन आप उसमें कर सकते हैं, किसका भी कन्वर्शन आप किसमें भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं कोई। सपोज अगर मेरे पास ये एक फिशर है और मुझे इसको वेज में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा इसको? तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे कार्बन निकाल रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा, तो ये वाला जो हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ये हो गया तुम्हारे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो थिक लाइंस निकले, और ये हो गया तुम्हारे वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं फिशर, और इसको हम क्या बोलेंगे? Wedge. वेज कन्फर्मेशन। और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते रहते हैं। सो टेक द एग्जांपल ऑफ इथेन नाउ, सिंपल। तो इथेन को ले लो, CH3 और ये CH3। तो CH3 कैसे लिखोगे आप? तो मैं फटाफट यहाँ पे 2 लाइन लगा दूंगा। यहाँ पे बीच के जो है मेरे कार्बन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ये हो गया CH3, ये हो गया दूसरा CH3। मुझे अगर इसको वेज में लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा? ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक आ जाएगा, और इधर आ जाएगा। हो गया। So this is called the wedge. Now we have two isomers of this particular this compound. तो आप इस पे थोड़ा सा वर्क करो। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है COH और CH3, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को आप 3 ग्रुप एक्सचेंज करके देखो, या 2 ग्रुप एक्सचेंज करके देखो, आपको क्या क्या मिलता है। देखिए इसके बाद कितने अलग अलग कंपाउंड्स तुमको मिलते हैं वो देखो। अगर उनका RS निकालता है तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। सपोज अगर ये मॉलिक्यूल है और मैं इसको 180 से रोटेट कर रहा हूँ। कितने से रोटेट कर रहा हूँ? सपोज 180 से, वो भी इन प्लेन में। तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो रहा है ना स्ट्रक्चर आपका पूरा। CO2 नीचे जाएगा, CH3 ऊपर जाएगा, है ना। यानी कि हमारा CH3 जो है वो यहाँ आ गया, COH आपका यहाँ पे आ गया, और क्या हो जाएगा? OH आपका इधर आएगा, OH इधर, H आपका, हाइड्रोजन इधर। ठीक है। और अगर मैं इस कंपाउंड को 90 से रोटेट करता हूँ, 90 से, तो क्या हो जाएगा? इफ आई रोटेट दैट कंपाउंड बाय 90 डिग्री, सो व्हाट हैपन नाउ? हाइड्रोजन ऊपर, OH के जगह COH, CH3 के जगह OH, और CH3 हाइड्रोजन की जगह। H आपका ऊपर आ गया, बराबर है। यस यस। और कौन है? H के बाजू में CO2H। इधर CH3 आ गया, यस इधर COH आ गया, और इधर OH आ गया। यस। तो अब ये जो कंपाउंड बने हैं 1 2 3, इनका आपको क्या निकालना है? रिलेशनशिप निकालना है। जैसे कंपाउंड 1 ये है, कंपाउंड 2 ये है, और कंपाउंड 3 ये है। तो पहला 180 से रोटेट हुआ है, तो इसका मतलब वो होमोमर हो जाएगा। और जो 90 से रोटेट होता है, सो दैट इज नथिंग बट द इनैनियोमर। ठीक है, यानी कि 1 and 3 आर इनैनियोमर, 1 and 2 आर व्हाट? द होमोमर्स। ऐसा भी आप कर सकते हैं। यू कैन आल्सो टेक द RS आल्सो। तो RS लेकर भी जो है हम किसी भी कंपाउंड को बेसिकली जो है यूज में ला सकते हैं। यू कैन यूज दैट सिंपल RS अगेन। लेकिन जब 2 कायरल सेंटर आते हैं तब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सो इसलिए हम जो टार्टारिक एसिड का जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1 OH, second OH, this is what COOH, and this is what COOH. This is the tartaric acid. अब टार्टारिक एसिड में जो है आपको इसको वेज में लाना है पहले। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे? ऐसे, दिस इज CO2H, दिस इज CO2H। और जो 2 रहेंगे वो कैसे रहेंगे? एक रहेगा ऐसे,
और एक रहेगा मेरा S। एग्जाम्पल निकाला मैंने, ये जरूरी नहीं है कि दोनों OH आपके अबोव द प्लेन ही होने चाहिए, वो कैसे भी हो सकते, आप अलग अलग 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मुझे इसको लेके जाना है फिशर में, जब मैं फिशर में लेके जाऊंगा तो दो आगे वर्टिकल, एक आगे वर्टिकल लाइन और बाकी आगे आपके हॉरिजॉन्टल। COH दोनों भी सेम है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ गया OH, OH, H और H, ये बना मेरा पहला कंपाउंड। कितने बनेंगे ऐसे, कितने बना सकते हैं आप ऐसे, कितने बने, तो थोड़ा सा इसको देखो, 4 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे इसके अंदर। फिर आपको इन दोनों का रिलेशनशिप पता करना चाहोगे, कौन कैसे रिलेशनशिप दिखाता है एक दूसरे के साथ।